Hello everyone. Again I welcome you to the class and this is me Ankita. So आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. ओके, हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ लिया था, राइट? एंड आई होप देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग द प्रीवियस क्लासेस. So without wasting any more time, let's start with the chemical properties of ether. Okay, reactions which involves alkyl group of ether, reaction which involves the cleavage of CO bond of ether. Okay, all these things we will study now. So first is which the reactions which involves the alkyl group of ether. Okay, so first one is formation of peroxide or hydroperoxides. Okay, so generally क्या होता है ना, ethers are inert, they don't get readily react with, or they don't readily react with your any of the acid, base, or any of the compound. Okay, just to carry out that reaction we require some drastic conditions. Okay, so when the ether is came in contact with the atmospheric oxygen for a long period of time, okay, that time there is a formation of peroxide or hydroperoxide. Ethers combine with atmospheric oxygen for long period of time to form peroxide. Okay. Now this reaction is very undesirable, right? The conversion of ether to peroxide or hydroperoxide is very undesirable because peroxide is highly poisonous. Okay. It is highly poisonous and it decomposes violently. Okay. So all the ethers, all the ethers which have been exposed to atmosphere for the long period of time, they contain peroxide or hydroperoxide. Okay. So what is happening here? Now look, this is your diethyl ether, right? Now when this diethyl ether is came in contact with the oxygen, right? अभी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, दैट मीन्स लाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, लाइट को एक्सपोज्ड है, राइट? तो क्या होगा, दिस ऑक्सीजन विल कम एंड बॉन्ड टू अल्किल ग्रुप ओवर हियर. ठीक है, ये अल्किल ग्रुप को बॉन्ड करेगा, ना कि इथाइल ऑक्सीजन को. फाइन. तो ये ऑक्सीजन आएगा, दिस विल बॉन्ड टू दिस कार्बन. ओके, इस कार्बन को दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट? तो एक हाइड्रोजन तो वैसे ही अटैच्ड है ना? और दूसरे हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया है, राइट? लुक हियर. Now this is your ether hydroperoxide. Ether hydroperoxide. Fine. So here it is hydroperoxide. So this is your formation of peroxide. Fine. Formation of hydroperoxide. So I hope the reaction is clear. Okay, just remember ether is a inert one. Okay, वो बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देता है. दैट्स व्हाई वी यूज ईथर एज अ सॉल्वेंट इन मेनी ऑफ द रिएक्शन, राइट? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर, है ना? तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. फाइन. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर. मूविंग फर्दर. Now next is the reaction which involves the cleavage of carbon oxygen bond present in the ether. Okay, so the first one is reaction with dilute sulfuric acid, which is also known as hydrolysis. What is hydrolysis? Cleavage using water, right? That is your hydrolysis, है ना? So अभी देखो, मैंने पहले ही बोला you have to provide some drastic condition. So this reaction is carried out under pressure. ओके, सो ईथर व्हेन हीटेड, हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, ईथर्स व्हेन हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, it undergoes hydrolysis. Okay, now look, this is your R O R dash. Fine. It undergo hydrolysis मतलब HOH. कब hydrolysis दिखाएगा ये? When you heat this ether with dilute sulfuric acid H2SO4, right? So what is happening here? This RO bond, this carbon oxygen bond get cliff. अभी ये क्लिव हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के साइड में देयर इज हाइड्रोजन एंड अल्किल ग्रुप के साइड में देयर इज OH ग्रुप. दिस OH ग्रुप एंड दिस हाइड्रोजन इज नथिंग बट योर वाटर मॉलिक्यूल. ओके, हाइड्रोलिसिस किया इन्होंने, तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया. You will get two molecules of alcohol, and if your R and R dash are same, then you will get two same alcohol molecules, and if your R and R dash are different, then you will get
two different alcohol molecules. Now look here, this is diethyl ether where both the alkyl groups are same, right? अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. We heated this diethyl ether with dilute sulfuric acid under pressure. Okay, so it undergo hydrolysis, cleavage of this carbon oxygen bond. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा. तो आपका क्या बन गया, C2H5OH and C2H5OH. So you will get two molecules of ethyl alcohol. Okay, now consider for mixed ether, ethyl methyl ether, where both the alkyl groups are different, right? When you heated such type of ether with dilute sulfuric acid under pressure, it undergo hydrolysis, फिर से क्लिव होगा, यहाँ पर H, यहाँ पे OH. You will get two different alcohol molecules. One is ethyl alcohol and one is methyl alcohol. Okay, ये हो गया CH3OH और ये हो गया आपका C2H5OH, राइट? क्योंकि ये बॉन्ड क्लिव हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? सो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर. ठीक है, इथर ऑल हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल, two molecules of alcohol, whether it may be same or different. Okay, fine. So next reaction is with HI. Next reaction is with concentrated HI. Fine. So firstly we will see what happened when you use cold concentrated HI. ठीक है, and then we will see for hot concentrated HI. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, we have simple ether. क्या है हमारे पास, we have simple ether where R both R are same. तो मैंने सेम कलर से इंडिकेट किया है. ओके, when it this one is heated with concentrated HI at 273 Kelvin. ठीक है, अगर 273 केल्विन टेम्परेचर है दैट मीन्स द कंडीशन इज कोल्ड. ठीक है, इतना याद रखना, 273 केल्विन टेम्परेचर अगर दिया है आपको HI के साथ दैट मीन्स द कंडीशंस कैसी है, कोल्ड है. और या फिर कोल्ड कंडीशन मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर. ओके, सो व्हेन सिंपल ईथर इज हीटेड with or treated with cold concentrated HI, okay, again what has happened, you will get alkyl iodide and alcohol. You will get alkyl iodide and alcohol. look, ये bond फिर से break होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ओके, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा आपका I. फाइन. सो ये बन गया आपका अल्कोहल ROH और ये बन गया आपका RI, alkyl iodide. When this carbon oxygen bond get cleave, you will get alkyl iodide and alcohol for simple ethers. Okay, now this is your diethyl ether. Okay, तो ये bond cleave होगा when you treated this with concentrated HI in cold conditions or cold concentrated HI, right? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा I. तो क्या बन गया, ethyl iodide and ethanol, right? So यही चीज आपको याद रखनी है. Okay, when we talk about mixed ether, when mixed ether is treated with cold concentrated HI, okay, अभी यहाँ पे क्या होगा, अगेन एक बॉन्ड क्लिव होगा, है ना, एक तरफ H आएगा एक तरफ I आएगा. बट दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अल्किल ग्रुप, कि किसके तरफ आयोडाइड जाएगा और किसके तरफ अल्कोहल जाएगा, राइट? अगर आपका R और ये वाला R डैश इज डिफरेंट, ओके, मैंने डिफरेंट कलर से इसीलिए इंडिकेट किया है, दे आर डिफरेंट. फाइन. सो R जो ग्रुप है, ग्रीन R जो है ये वाला, दिस इज लोअर अल्किल ग्रुप. ठीक है, मतलब दिस वन इज प्राइमरी, कंसिडर कर लीजिए दिस वन इज प्राइमरी एंड दिस वन इज हायर अल्किल ग्रुप, मतलब सेकेंडरी या टर्शरी. ओके, फाइन. सो जो लोअर ग्रुप रहेगा दैट विल फॉर्म लोअर अल्किल हैलाइड, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले R के पास क्या आएगा, इस वाले R के पास I आएगा, राइट? तो क्लीवेज कैसा होगा, क्लीवेज आपका इस तरफ से होगा. वेट अ सेकेंड. हाँ, यहाँ से आपका क्लीवेज हुआ, राइट? यहाँ पे आएगा आपका I और यहाँ पे आएगा आपका OH. ठीक है, तो यू विल गेट हायर अल्कोहल एंड लोअर अल्किल
हलाइड। तो ये मिक्स्ड ईथर में ये चीज याद रखना। नाउ टेक द एग्जांपल, ठीक है। अभी देखिए ये जो ग्रुप है ग्रीन कलर का, दिस इज हाइयर ग्रुप, एंड जो रेड कलर के है दिस इज लोअर ग्रुप। तो बॉन्ड कौन सा क्लिप होगा, ये वाला, राइट। यहाँ पे आएगा आपका हलाइड आई, और यहाँ पे आएगा आपका एच। so that time only you will get higher alcohol and lower halide, right? तो ये चीज आपको याद रखनी है ड्यूरिंग मिक्स एथर, ओके। कि लोअर जो मिलेगा मिलेगा आपको अल्किल हलाइड एंड अल्कोहल ही। जस्ट रिमेंबर द लोअर अल्किल ग्रुप will form halide and the higher alkyl group will form alcohol, okay? I hope this much is clear to everyone. Fine, moving further. So abhi there are some notes, like the point to remember is ethers are cleaved by strong acid, as I said you earlier कि ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, नॉर्मल इसमें हम वो रिएक्शन नहीं देंगे, राइट। सो स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए लाइक HI and HBr, राइट। दे दे आर इनफ टू प्रोटोनेट द इथर, ओके। और उसका क्लीवेज करने के लिए HCl यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। Ethers are not cleaved by HCl, they can cleave by HI and HBr because iodide ion and bromide ion, they are very good nucleophile for the substitution also, okay। So ये चीज आपको याद रखनी है। The order of reactivity of hydrogen halide for ether is HI, ठीक है। ether HI के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन दिखाएंगे आपको, then HBr and then HCl, okay। In case of mixed ether जो अभी हमने पढ़ा, the alcohol and alkyl iodide form depends on the nature of alkyl group, lower alkyl iodide बनेगा और higher alcohol बनेगा। So when there is one exception, when primary and secondary alkyl groups are present, ठीक है, it is lower alkyl group that forms iodide। जब आपका दो R और R डैश, ठीक है, जब आपका ये वाला R, whenever this R is primary और secondary, ठीक है, तो जो लोअर अल्किल ग्रुप होगा that will form your iodide, but tertiary alkyl group is present. If either of the R is tertiary, that will gives higher alkyl halide and lower alcohol, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल है tertiary butyl methyl ether, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे this one is higher group and this one is lower group, राइट। तो अकॉर्डिंगली क्या बनना चाहिए, CH3I बनना चाहिए, लोअर अल्किल हलाइड बनना चाहिए और हाइयर अल्कोहल बनना चाहिए। बस इस केस में whenever either of the group is tertiary, तब क्या होगा, टर्शरी हलाइड बनेगा और लोअर अल्कोहल बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज द एक्सेप्शन, ठीक है। जो हाइयर है, जो टर्शरी ग्रुप है, दैट विल फॉर्म हलाइड एंड लोअर विल फॉर्म अल्कोहल, लोअर ग्रुप विल फॉर्म अल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। जब प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, दैट टाइम इट विल फॉर्म lower alkyl group will form iodide and higher will form alcohol, okay। सो अभी देखते हैं हॉट कंडीशन में क्या होगा। अभी तक हमने कौन सी कंडीशन देखी, अभी तक हमने कोल्ड कंडीशन देखी। व्हेन ईथर इज ट्रीटेड विद कोल्ड concentrated HI, it will give alkyl iodide and alcohol, right। नाउ सिंपल ईथर में क्या होगा और मिक्स ईथर में क्या होगा, व्हेन इट इज हीटेड विद हॉट concentrated HI, okay। So simple ether and mixed ether, they react with hot concentrated HI to form alkyl iodide। आपको क्या मिलेंगे, अल्किल आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। So when simple ether C2H5O C2H5 diethyl ether is heated with hot concentrated HI, now here the temperature is 373 Kelvin, okay, that's why the condition is hot, okay। So ये bond क्लिव होगा, ओके। तो यहाँ पे भी पहले यही बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन एक्सेस ऑफ HI। हमने क्या लिया है, HI कैसा लिया है, एक्सेस में लिया है। जब कोल्ड कंडीशन था तब हमने एक्सेस में HI नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले क्या बनेगा, यहाँ पे पहले C2H5OH बनेगा, C2H5OH बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, C2H5I बनेगा, है ना, ऐसे। तो ये हो गया आपका C2H5OH प्लस C2H5I, इथिल आयोडाइड।
तो जस्ट बिकॉज आपने HI एक्सेस में लिया है तो ये अल्कोहल फिर इस एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेगा, राइट और फिर वो क्या बना देगा, इथिल आयोडाइड C2H5I। फाइन, मतलब ये वाला ये H2O बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है, और बचा क्या C2H5I, है ना, H2O तो बाहर निकल गया ना, तो ये वाला एक मॉलिक्यूल और ये वाला एक मॉलिक्यूल, ऐसे हो गए आपके 2 molecules of ethyl iodide when diethyl ether is treated with hot concentrated HI. That is because we have taken HI in excess and we raise the temperature. We carried out the reaction at higher temperature. ठीक है, that's why that alcohol, ethyl alcohol जो बना था, that get converted to ethyl iodide. और एक मॉलिक्यूल तो पहले से ही बना था ना ethyl iodide का, right? So this is the thing which is happening at hot condition. Okay? ethyl methyl ether में क्या होगा? Again same चीज होगी. It is heated with excess of HI, hot concentrated HI. ठीक है? So you will get ethyl iodide and methyl iodide. मतलब दोनों जो alkyl group है ना, in case of mixed ether and simple ether, when they treated with hot concentrated HI, right? दोनों alkyl group they will convert to iodide. वो क्या में convert हो जाएंगे? वो iodide में convert हो जाएंगे with removal of H2O. With removal of H2. Okay? Just for the memorize purpose, ये वाला oxygen, this ethereal oxygen will combine with 2 hydrogen of HI and they will form twice H2O, sorry, water molecule. Okay? और ये जो I है, यहाँ पे 2 I है ना, तो one will combine with this alkyl group, one will combine with this alkyl group. Okay? I hope this much is clear to everyone. Now next is alkyl aryl ether. What happens when alkyl aryl ether is treated with hot concentrated HI? Now this time you will get alcohol and iodide, alkyl halide. Okay, इस टाइम पे आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और अल्किल हलाइड मिलेगा. Why this is so? क्योंकि अगर आप एक्सेस में HI यूज करते भी हो, इफ यू ट्रीटेड दिस अल्किल अरिल इथर विद ट्वाइस HI, देखिए हॉट कंडीशन जब भी होगी ना तब हम एक्सेस में HI लेंगे, ट्वाइस HI. हमने कोल्ड में सिर्फ HI लिया था, राइट हमने एक्सेस में HI नहीं लिया है, ये चीज याद रखना. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल बनेगा और ये फिनॉल फिर आपका अरिल हलाइड में कन्वर्ट नहीं होगा. जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे पहले इथिल अल्कोहल बनता है और फिर उसका कन्वर्जन होता है टू द इथिल आयोडाइड एंड दैट इज द रिजल्ट कि आपको एंड में क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल आयोडाइड, राइट. बट यहाँ पे ये अरिल हलाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है. वी विल सी द मैकेनिज्म, ठीक है, क्यों नहीं होगा. तो हमेशा याद रखना, व्हेन अल्किल अरिल ईथर इज ट्रीटेड विद HI, ओके, तो क्या बनेगा, अल्किल आयोडाइड एंड फिनॉल, अल्किल आयोडाइड एंड फिनॉल. तो हमेशा कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, यही बॉन्ड क्लीव होगा. ओके, ये वाला बॉन्ड क्लीव नहीं होगा, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, ये बॉन्ड क्लीव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन, दिस बॉन्ड इज have this bond is having partial double bond character, right? हमने रेजोनेंस में देखा था, दिस बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जिसकी वजह से ये क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्गर हो जाता है, राइट. बॉन्ड लेंथ इसकी कैसी हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है. तो अभी इस बॉन्ड को क्लिव करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी विच वी डोंट हैव, राइट. सो दैट इज द रीजन कि ये बॉन्ड क्लिव होगा और यहाँ पे आएगा आपका I और यहाँ पे आएगा आपका H. तो ये बन गया आपका फिनॉल और ये बन गया आपका मिथिल आयोडाइड. ओके, तो अभी इसको फर्दर अगर आपने एक्सेस ऑफ HI लिया, राइट, तो ये बॉन्ड क्लिव करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे H और यहाँ पे I आएगा. बट ये बॉन्ड क्लिव करना पॉसिबल है क्या, नहीं है. इसीलिए फिनॉल कभी आगे कन्वर्जन नहीं करेगा. फिनॉल विल नेवर फॉर्म अरिल हलाइड विद एक्सेस ऑफ HI, ठीक है. इट विल द प्रोडक्ट इज ऑलवेज मिथिल आयोडाइड, सॉरी मतलब अल्किल आयोडाइड एंड
फिनॉल। एंड इन दिस केस हमने एनिजोल यूज किया है, राइट? तो इस केस में प्रोडक्ट क्या होंगे? मिथिल आयोडाइड एंड फिनॉल। ओके, आई होप द थिंग इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। फाइन, जस्ट रिमेंबर, जब भी अरिल ग्रुप रहेगा तो दैट विल कन्वर्ट टू अल्कोहल, मतलब वो फिनॉल बनाएगा। ओके, और जो भी बचा हुआ अल्किल ग्रुप है वो आपका क्या बनाएगा? आयोडाइड बनाएगा, ठीक है, हलाइड बनाएगा। आप HBr के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो ब्रोमाइड बन जाएगा, HI के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आयोडाइड बन जाएगा। तो जो भी लोअर ग्रुप है दैट विल फॉर्म अल्किल, हलाइड, और जो भी अरिल ग्रुप था, ठीक है, दैट विल फॉर्म फिनॉल। एंड देयर इज नो फर्दर कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू अरिल हलाइड, ठीक है। तो रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगी, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेंगी एज दिस वन इज प्रोसीडिंग इन दिस। ये यहाँ पे जैसे प्रोसीड कर रही थी ना इथेनॉल टू इथिल हलाइड, वैसे यहाँ पे प्रोसीड नहीं करेगी। ओके, सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। अभी देख लेते हैं कैसे अल्कोहल और आयोडाइड बनता है, राइट? सो अभी देखो हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है मिथोक्सीमीथेन डाइमिथिल ईथर हमने यूज किया है, ठीक है। अभी इस मिथोक्सीमीथेन में क्या होगा, वी ट्रीटेड दिस विद HI, राइट? तो सबसे पहले ना क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है ऑफ दिस इथरल ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सोनियम आयन। किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ओके, तो ये क्या करेगा, दिस ऑक्सीजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल अटैक ओवर दिस हाइड्रोजन, राइट? तो इस हाइड्रोजन पे अटैक करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो बन गया बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए। अभी 2 तो कार्बन के साथ पहले से ही थे, तीसरा किसके साथ बनाया? तीसरा हाइड्रोजन के साथ बन गया, इसीलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अभी इसने ऑक्सीजन ने अपने लोन पे से इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, दैट मींस ये बॉन्ड क्लिव हो गया ना। तो अभी आपके पास क्या है, वी हैव आई नेगेटिव, ठीक है, विच विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये बन गया आपका डाइमिथिल ऑक्सोनियम आयन। तो दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो आपका आई नेगेटिव है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है आई नेगेटिव आयोडाइड आयन, ओके, this will attack over this oxonium ion। ये oxonium ion पे अटैक करेगा। अभी ये कैसे अटैक करेगा, this ion will attack over this alkyl group, ओके, और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेगा। देखो अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो ऑक्सीजन विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस बॉन्ड, ओके, एंड आई नेगेटिव will attack to the least substituted carbon। हमेशा याद रखना, the nucleophile will attack on least substituted alkyl group। ओके, कौन से अल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा? लीस्ट सब्सटीट्यूटेड। तो ये चीज याद रखनी है, जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर रहेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा। तो जब ये यहाँ पे अटैक करेगा, अभी मैकेनिज्म SN2 है, मतलब ये ग्रुप यहाँ से निकलने से पहले ही आई ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, राइट? तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन ने ले लिया, तो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या बन गया अभी? CH3OH मिथेनॉल, ओके। और ये क्या बन गया, यहाँ पे अटैक करने के बाद अल्टीमेट प्रोडक्ट इज मिथिल आयोडाइड। तो सिर्फ इतनी चीज याद रखना, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम या अल्किल ग्रुप पे वो अटैक करेगा, ओके। नाउ स्टेप 3 इज इफ वी यूज एक्सेस ऑफ HI, मतलब हमने HI जो है वो एक्सेस में लिया है, ठीक है, दैट मीन्स ट्वाइस HI, है ना। And if we raise the temperature, if we carried out the reaction at higher temperature, so the methyl alcohol ये जो बना है which is formed in step 2 is converted to methyl iodide। Now how this is converted, देखो ये जो मिथिल अल्कोहल बना ना, मिथेनॉल बना, ये फिर से इस एक्सेस ऑफ HI के साथ रिएक्ट करेगा, राइट? तो ये फिर से ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? I नेगेटिव, right? And this hydrogen will form bond with this oxygen। देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया and oxygen acquire positive charge, है ना, तो प्रोटोनेटेड मिथेनॉल बन गया। अभी क्या होगा, अभी हमको क्या चाहिए, राइट? इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट? तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू दिस अल्किल ग्रुप,
right? And oxygen will take up electron pair from this bond and will live as H2O, वाटर मॉलिक्यूल करके वो बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, मिथिल आयोडाइड. क्या बन गया, मिथिल आयोडाइड. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसे जब हम हॉट कंडीशन यूज कर रहे थे, जब हम एक्सेस ऑफ HI यूज कर रहे थे, तो हमको क्या मिल रहे थे, वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्किल आयोडाइड, राइट? तो हाउ इट इज, सो दिस इज अ मैकेनिज्म. ओके, सबसे पहले वो अल्कोहल और अल्किल आयोडाइड ही बनाएंगे, लेकिन जब आप एक्सेस में यूज करते हो और जब आप हॉट कंडीशंस देते हो, तब वो अल्कोहल जो बना था वो आपका अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो नाउ अभी हमने एक एक्सेप्शंस देखा था जिसमें था टर्शरी ग्रुप अगर रहेगा तो दैट विल फॉर्म आयोडाइड. सो नाउ वी विल सी हाउ इट इज. ओके, देखो जब टर्शरी ग्रुप होता है ना और उस पे अगर आप HI का एडिशन करते हो, राइट, तो क्या करेगा, देखो ये इथर है, राइट, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये H पॉजिटिव ले लिया इसने, राइट. आपके पास और क्या बचा, I निगेटिव बच गया अभी. तो इस ऑक्सीजन ने इस H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, राइट. देखो बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. अभी ऑक्सीजन के पास दो ऑप्शन है. वन, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहला ऑप्शन है कि आप यहां इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लीजिए, या फिर ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लीजिए, राइट. तो अगर ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, ओके, तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, ये टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, राइट. और अगर ऑक्सीजन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा. तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, राइट. तो ऑक्सीजन कहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, राइट. और क्या बन जाएगा, ये मिथिल अल्कोहल CH3OH, राइट. तो अभी आपके पास क्या है, अभी आपके पास टर्शरी कार्बोकेटायन है जिसपे कौन अटैक करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल, राइट. ये न्यूक्लियोफाइल आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा and there is formation of tertiary butyl iodide and methanol. Okay, तो अब समझ में आया why higher alkyl group or tertiary group will form iodide and lower group will form alcohol in case of tertiary, if either of the group is tertiary. Okay, so here the mechanism is SN1. यहाँ पे mechanism कौन सा है, SN1. Okay, पहले कौन सा था, SN2 था, ठीक है. जब टर्शरी आएगा तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN1 हो जाएगा. फाइन, व्हाई, बिकॉज SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. दैट इज द रीजन. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, जस्ट याद रखना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. ओके, कि वाई टर्शरी ग्रुप ने ये बना है, और जब हम हॉट कंडीशन लेते हैं तो ऐसा क्या होता है कि आपको दो अल्किल हैलाइड मिलते हैं, राइट, अल्किल आयोडाइड मिलते हैं, ऐसा क्यों, तो इसीलिए ये मैकेनिज्म्स थे. फाइन. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाउ दिस आर द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज शोन बाय द ईथर. ओके, सो द अल्कोक्सी ग्रुप, अल्किल अरिल ईथर, जो अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, the pulsar effect of this group, alkoxy group, increases the electron density at 2 ortho position and 1 para position. Okay, so this is ring activating group. Okay, this will activate the ring for electrophilic substitution. ये ग्रुप जो है ना, ये रिंग को एक्टिवेट करता है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करे. ओके, एज वेल एज इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैच होगा, दैट विल कम एट ऑर्थो पोजिशन या फिर पैरा पोजिशन. ओके, सो क्या होगा, देखो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये डोनेट करेगा, राइट. ये जैसे ही डोनेट किया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऑर्थो पोजिशन पे. तो ऑर्थो पोजिशन पे क्या आ गया, ऑर्थो पोजिशन पे निगेटिव चार्ज आ गया.
और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया था, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, राइट, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फाइन। अभी ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे तो रह नहीं सकता, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे आ गया दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना, ये देखो बॉन्ड बन गया, राइट। अभी ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया और यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड है, तो ये कार्बन तो अनसेटिस्फाइड हो गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। अभी ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। वेट अ सेकेंड, थोड़ा रफ करके आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, बन गया बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ऑर्थो पे फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, अभी ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये वाला फिर से पहला वाला स्ट्रक्चर आपका बन गया, ओके। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, ऑर्थो पे और पैरा पे, ओके। सो ऐसे ही कुछ रिएक्शन हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज हैलोजिनेशन, सेकेंड वन इज नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओके। सो हैलोजिनेशन में क्या हो रहा है, एनिजोल, okay, when undergoes bromination with bromine in ethanoic acid, acetic acid, okay, even in absence of iron bromide catalyst, okay। मतलब इसको लुईस एसिड कैटालिस्ट भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है, OCH3 ग्रुप जो है, दिस इज वेरी रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसको कैटालिस्ट की जरूरत भी नहीं है, ओके। इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप, जो मैंने अभी आपको बोला, ओके। सो ये है आपका एनिजोल एंड दिस इज योर ब्रोमीन। when this anisole is treated with bromine in presence of acetic acid or ethanoic acid, it undergoes bromination, okay। तो क्या होगा, ये जो Br है ये एक तो ऑर्थो पोजिशन पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, है ना, यही पे आएगा। तो देखो ये बन गया आपका पैरा प्रोडक्ट, ये बन गया आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, fine। So this one is your major product, para product is the major one and this one is the minor product due to steric hindrance, ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, introduction of NO2 group, nitro group. So when anisole is treated with nitrating mixture, nitrating mixture क्या है, concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4, ओके। सो जब आपका एनिजोल इसके साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करता है, तो इंट्रोडक्टरी ग्रुप कौन सा है, इंट्रोडक्शन किसका होगा, NO2 ग्रुप का। कहाँ पर होगा, ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा, राइट। तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। देखो ऑर्थो पे आया और यहाँ पे कहाँ पे आया, पैरा पे आया, राइट। सो 2 नाइट्रोएनिजोल एंड 4 नाइट्रोएनिजोल, ओके। सो आई होप दिस मच इज क्लियर, नाइट्रेशन क्लियर है सबको। रिएक्शंस आर वेरी सिंपल, जस्ट आपको ये याद रखना है कि ऑर्थो पे पैरा पे किसके साथ आपको ट्रीट करना है, टू इंट्रोड्यूस नाइट्रो ग्रुप और टू इंट्रोड्यूस ब्रोमीन ग्रुप, ओके। Next is Friedel-Crafts reaction. Now anisole undergo Friedel-Crafts reaction in presence of anhydrous AlCl3 when it is reacted with alkyl chloride या फिर acid chloride, right? तो क्या होता है, this is your anisole and with this anisole is treated with ethyl alkyl chloride CH3Cl, तो introductory group कौन सा होगा, alkyl group होगा। CH3 group will introduce in the ring at ortho position and para position, okay। So this happen in presence of anhydrous AlCl3, okay। CS2 is in some
समटाइम्स वी यूज इट, समटाइम्स वी वोंट, ठीक है, तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. रिएक्शंस हैपन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे कौन सा ग्रुप आया, CH3, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ना, ये जो हाइड्रोजन था, this hydrogen will combine with this Cl and there is removal of HCl. तो ये बन गया आपका 2-methoxy toluene. This is 1, this is 2. 2-methoxy toluene, and here it is at para position, so it is 4-methoxy toluene. Fine, 1, 2, 3, 4. So this is your major product, this one is your minor product. When the same anisole is treated with acid chloride, CH3COCl, reaction takes place in presence of anhydrous AlCl3, which will act as a catalyst, right? तो introductory group कौन सा है, COCH3 जी. कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे? तो यहाँ के जो हाइड्रोजन है that will combine with the Cl, removal of HCl. ओके, अभी क्या बन गया, 2-methoxy acetophenone and 4-methoxy acetophenone. देखो पैरा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप है और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 ग्रुप है, राइट? सो दिस इज द थिंग, दिस इज द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. इज वेरी सिंपल. जो ये ग्रुप है ना, वही आपको पैरा पे और ऑर्थो पे लगाना है. दैट्स डन. ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ 3 ही रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं एंड दे आर वेरी सिंपल. ओके, next is uses. What are the uses of alcohol, phenols, ether, right? This is the last part of the unit. जो भी हमने अभी तक पढ़ा, हमने अल्कोहल्स पढ़े, हमने फिनॉल्स पढ़े, हमने इथर्स पढ़े. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, हमने क्यों पढ़े, हमारी डे टू डे लाइफ में इसका क्या यूज है, राइट? सो फर्स्ट वन इज अल्कोहल. so मिथिल अल्कोहल is used as a solvent for paint and varnishes. ठीक है, जब हम पेंट और वार्निश बनाते हैं तो मिथिल अल्कोहल is used as a solvent for that. ओके, तो मिथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना. मिथिल अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट. ओके, दिस इज prepare at commercial level. This is methyl alcohol is prepare from carbon monoxide. ठीक है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं in presence of catalyst, that is zinc oxide ZnO and Cr2O3 chromic oxide. ओके, इसके प्रेजेंस में हम किसका रिडक्शन करते हैं, किसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का. ठीक है, एंड इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, प्रेशर. ठीक है, सो दिस विल गिव यू मिथेनॉल. ये क्या देता है हमको, मिथेनॉल देता है. ओके, तो ये चीज याद रखना, एट कमर्शियल लेवल हाउ मिथेनॉल इज प्रिपेयर्ड. Fine. Now, ethyl alcohol is used as an antifreeze agent in automobile radiator. Okay, and it is also used as a solvent. ये तो हमको पता ही है. Ethyl alcohol is used as a solvent. Fine. Now, do you know how ethyl alcohol is prepared? It is prepared by the fermentation process. किसका fermentation? By the fermenting glucose, fructose, right? जो sugars होते हैं, sugar in your molasses, in sugar cane, right? इनका fermentation किया जाता है using different enzymes. Okay, जिसको इथिल अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है यूजिंग शुगर, जो मोलासिस होता है, शुगर इन मोलासिस इन शुगर केन, राइट? तो उनका फर्मेंटेशन किया जाता है एंड देन इट विल कन्वर्ट टू ethyl alcohol. Okay, now always remember methyl alcohol is very dangerous, it is hazardous. Okay, even small quantities अगर आपने intake किया है मिथेनॉल का, okay, it will cause blindness, and in large quantity it is fatal. Okay, and can lead to death also. So phenol का क्या uses है? Phenol is used in the preparation of polymer. Phenol is used in the preparation of polymer. अभी polymer की कौन सा polymer हम बना सकते हैं phenol से? That is bakelite. That is bakelite. Okay, अभी bakelite के preparation के लिए we required your polymer phenol and formaldehyde. Okay,
फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड से हम बेकलाइट बनाते हैं. सो इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर. नाउ फिनॉल आर यूज एज अ एंटीसेप्टिक in air freshener, deodorants, mouthwash, and number of common products. Okay, so it is also used as disinfectant. ठीक है, phenol is used as antiseptic in very very small concentration. Okay, now ether. What is ether? Ether की क्या uses है? Diethyl ether is used as a solvent for Grignard's reagent. हम already जब भी Grignard reagent use करते हैं हम लिखते हैं कि it is take place in presence of ether, right? So diethyl ether is used as a solvent for number of reactions, okay, because it is inert, inertness की वजह से. Okay, diethyl ether is used as a general anesthetic in surgical operation. Okay, it is used as a anesthesia. Fine, पहले क्लोरोफॉर्म देते थे but because of its hazardous effects, okay, तो अभी क्या देते हैं, डाइथिल इथर देते हैं. So इसके अलावा भी there are number of uses. Okay, you can go through the uses. If the question comes what are the uses, or write the uses of for alcohol, phenols or ethers, you can write it. Okay, so go through the number of uses. यहाँ पे मैंने दो दो explain किए हैं. Fine, so you can write any of the uses depending on the marks. ठीक है, एक मार्क के लिए आता है क्वेश्चन तो you have to write 2 uses, 2 मार्क के लिए आता है तो you have to write 4 uses. Okay, so this is all about the unit alcohol, phenol and ethers. Here we conclude the chapter. Okay, I hope everything is clear to every one of you. If you have any doubt regarding anything regarding alcohols, phenols, ether, you can ask me in the comment section given below. I will try to reply you as soon as possible. Okay, so see you in next lecture with new unit. Okay, till then keep learning and keep practicing. Thank you. Bye bye.